Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. Students, tomorrow you have your computer exam. So for that computer exam, this worksheet which we are about to solve is very important. In this video, we will discuss the answers of this worksheet which I gave you in the WhatsApp group. Now, first you have to check your answers, and then after that you have to revise everything from this first chapter. Fine. Now, for the revision of this chapter, you can do one thing. You can watch both the videos and then you can learn or revise all the notes which I gave you till now. Fine. Only one chapter is coming. It's a very short chapter of 4 to 5 pages only. So you have to be very specific. You have to read each and everything very carefully and kindly read all the full forms and look for all the symbols and everything very carefully. Now let's start. Well, first we had some one word or one or two words questions. The first question is zeros and ones which are used in binary number system are termed as. Well, I have taught you earlier that in binary number system we have only 2 digits or 2 bits which are used, and these are zeros and ones. Fine. So in general, these zeros and ones are the numbers or the digits in our binary number system. Hence these are termed as bits or binary digits. Fine. Well, there is one more important thing. The full form of this term bits. Fine, ये bit एक term है जिसका full form होता है binary digit. तो अगर कभी कोई पूछता है कि what is the full form of this term bit, then you will say binary digits. Fine, now let's move to our question number 2. Our question number 2 is, which translator is used to convert assembly language to machine language? Fine. Well, the question is very simple. Here we are asking कि which translator is used to convert assembly language to machine language. अब जरा समझते हैं कि what is assembly language and what is machine language. Fine. Now, in our computer languages, we have two categories. First, we have high level languages and then we have low level languages. High level languages are the languages which can be written in English like keywords. Fine. मतलब वो languages जिसमें हम लोग English जैसे words या keywords का use करते हैं, all such languages are termed as high level languages. Fine. Whereas all the other languages which are directly known to our computer, वो languages जो computer को directly समझ में आती हैं, ये सारी languages होती हैं low level languages. Fine. Now in our low level languages we have two classifications, that is assembly language and machine language. मतलब low level language में दो चीजें होती हैं, assembly language और machine language. Fine. First we have this machine language. उसके बाद second number पे आती है assembly language. ये machine language क्या होती है भाई? मशीन लैंग्वेज एक 0 और 1 के फॉर्म में लिखी हुई लैंग्वेज होती है. इट मींस ये बाइनरी लैंग्वेज होती है. फाइन. इसमें हर एक चीज 0 और 1 के कॉम्बिनेशन के थ्रू ही रिप्रेजेंट करी जाती है. फाइन. हेंस इट बिकम्स वेरी इजी फॉर आवर कंप्यूटर टू रीड दिस लैंग्वेज, और उसको इस लैंग्वेज को रीड करने के लिए किसी भी ट्रांसलेशन की जरूरत या ट्रांसलेशन प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है. देन सेकेंडली वी हैव दिस असेंबली लैंग्वेज. नाउ इन दिस असेंबली लैंग्वेज वी हैव सम बाइनरी कोड्स एंड देन सम स्पेशल वर्ड्स. फाइन. इसमें कुछ बाइनरी कोड्स होते हैं और साथ में यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जिन कीवर्ड्स को हम लोग कहते हैं निमोनिक्स. फाइन. ऑल दीज कीवर्ड्स आर टर्म्ड एज निमोनिक्स. अभी स्पेलिंग हम लोग डिस्कस करेंगे निमोनिक्स की इसके बाद. ठीक है. नाउ सो इट मींस इन दिस असेंबली लैंग्वेज वी हैव बाइनरी आल्सो एंड सम निमोनिक्स आल्सो. वेल, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज निमोनिक्स, इन कुछ कीवर्ड्स की वजह से ये लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली समझ नहीं पाता है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट या ट्रांसलेट करना पड़ता है. Fine. And for that translation purpose we have assembler. Fine. तो भाई assembly language को machine language में कौन convert कर रहा है? It is assembler. Fine. Now our next question. What we call the abbreviated words which are used in assembly language program. Assembly language में use होने वाले words को हम लोग क्या कहते हैं? Fine. अब बेटा इस चीज को याद रखो, assembly language में जो words use होते हैं, these are termed as mnemonics. अभी मैंने ऊपर यहां पर समझाने की कोशिश करी थी. These are termed as mnemonics and the spelling of mnemonics is MNEMONICS. याद रखना इसमें ये M silent होता है. Fine. And it is pronounced as mnemonics. Okay. Now let's move to our question number 3. Well, it's a very important question. ये पता होना चाहिए सबको. Fine. And I hope सबने correctly इसका आंसर करा होगा. And you can do one thing. अपने करेक्ट आंसर्स मार्क करते चलो, और जो भी तुम लोगों का स्कोर इसका बनता है, you have to comment down your score in the comment section. Now the question number 4 is grammar rules used for writing a programming language. मतलब जब हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को लिखते हैं तो उसके लिए जो हम लोग रूल्स यूज करते हैं, उन रूल्स को क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल दीज रूल्स? सो दीज रूल्स आर टर्म्ड एज
सिंटेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फाइन, जैसे तुम लोगों ने क्लास 6 में बेसिक पढ़ी थी तो वहां पे कुछ सिंटेक्स हम लोगों ने लर्न करा था। फाइन, तो दैट सिंटेक्स इज टर्म्ड एज सम रूल्स व्हिच आर यूज्ड व्हाइल यू आर राइटिंग दैट प्रोग्राम। फाइन, नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज वेयर इज मदरबोर्ड लोकेटेड इन द कंप्यूटर सिस्टम। भाई कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड कहां पर होता है, पता है किसी को? Well, motherboard is generally located either at the back or at the bottom of our computer. Fine, that is either at the bottom or back side. Now next question is, in which programming language programs and instructions are written using English like words? कौन सी लैंग्वेज होती है जहां पर प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं इंग्लिश जैसे दिखने वाली लैंग्वेज या वर्ड्स में लिखे जाते हैं? तो अभी मैंने बताया था पिछली स्लाइड में कि दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसको हम लोग बेटा कह सकते हैं। फाइन, नाउ विद दिस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव वन प्रॉब्लम। ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ नहीं पाता है। फाइन, दैट्स व्हाई दिस लैंग्वेज नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन फॉर्म, और इसको मशीन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजें हम लोगों के पास, इसको मशीन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजें हम लोगों के पास, फर्स्ट वी हैव कंपाइलर एंड देन सेकंड वी हैव अ इंटरप्रेटर। फाइन, मतलब इस हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए दो टाइप के ट्रांसलेशन प्रोग्राम्स यूज हो रहे हैं, एंड दीज टू ट्रांसलेशन प्रोग्राम्स आर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। फाइन, इतना समझ में आया? अब हम लोग आगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे कि ये कंपाइलर क्या होता है और ये इंटरप्रेटर क्या होता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ट्रांसलेशन प्रोग्राम इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल इनटू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन? याद रखना ये इस क्वेश्चन की मेन यूएसपी है। फाइन, दैट वी आर सेइंग कि लाइन बाय लाइन कौन कन्वर्ट कर रहा है, तो याद रखो लाइन बाय लाइन कन्वर्जन का काम होता है इंटरप्रेटर का। फाइन, हैव यू गॉट दिस मच? इसका मतलब क्या हुआ भाई, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को जब मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ पर दो टाइप के ट्रांसलेशन प्रोग्राम्स का यूज करते हैं, इधर वी कैन यूज अ कंपाइलर और वी कैन यूज अ इंटरप्रेटर। फाइन, अभी जो इंटरप्रेटर है ये क्या कर रहा है भाई, इंटरप्रेटर हमारे कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहा है, यानी एक एक लाइन को रीड करेगा ट्रांसलेट करेगा, फिर सेकंड लाइन को रीड करेगा ट्रांसलेट करेगा, सिमिलरली पूरे कोड को रीड करेगा और ट्रांसलेट करेगा। देन नेक्स्ट वी हैव which translation program is used to convert high level language into low level language at one go? अब इसकी मेन यूएसपी लास्ट वाला वर्ड है जहां लिखा हुआ है at one go। फाइन, अब ये जो कंपाइलर होता है हम लोगों का, फाइन, ये जो कंपाइलर होता है भाई, ये वाला जो कंपाइलर है हम लोगों का, ये कंपाइलर क्या करता है, पूरे हाई लेवल कोड को एक ही बार में लो लेवल कोड में या मशीन लैंग्वेज में उठा के कन्वर्ट कर देता है। फाइन, समझ में आई इतनी बात? आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो बेटा पता होना चाहिए, बिकॉज कंपाइलर पूरे कोड को एक बार में कन्वर्ट करता है इसलिए ये प्रोग्राम बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है और ये बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होती है। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ये पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल कर रहा होता है और कन्वर्ट कर रहा होता है, तो यहाँ पर एरर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट सा हो जाता है अगर एरर्स बहुत सारी हैं तो। फाइन, अगर एरर्स कम है तो दिक्कत नहीं है, बट अगर एरर्स ज्यादा है तो वहां पर एरर्स को फाइंड आउट करना प्रॉब्लम वाली बात होती है। बट इंटरप्रेटर में ये डिफिकल्टी नहीं है, इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है। ठीक है, अब बिकॉज इट इज रीडिंग आवर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, दैट्स व्हाई द स्पीड इज वेरी स्लो। फाइन, बिकॉज ये लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है इसलिए यहाँ पे स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एरर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर अपनी हर एक लाइन को रीड करने के बाद उसकी एरर्स को इजिली रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। फाइन, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोगों का एक छोटा सा रिवीजन भी हो गया फर्स्ट पार्ट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाले। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज व्हिच सर्किट बोर्ड ऑफ सीपीयू कैरीज मोस्ट ऑफ द पोर्ट? किस सर्किट बोर्ड में सबसे ज्यादा पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं भाई? तो याद रखना, इन आवर कंप्यूटर वी हैव आवर मेन सर्किट बोर्ड व्हिच इज टर्म्ड एज आवर मदरबोर्ड, और इस मदरबोर्ड में प्रोसेसर, रैम, रोम सारी चीजें ही हम लोग लगाते हैं या पहले से ही लगी हुई होती हैं। फाइन, इन दिस motherboard only we have all the ports and options to plug in all the ports. Fine, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। अभी जो मदरबोर्ड है ये हम लोग के कंप्यूटर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल कंपोनेंट है। फाइन, तो इसको जरूर से जरूर डिटेल में पढ़ लेना एक बार जाकर के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट और इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट, फाइन, कौन सा इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट क्या करता है भाई, पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है बहुत सारे कंपोनेंट्स को कंप्यूटर के। फाइन, सो इट इज आर SMPS। याद रखना, जो SMPS होता है, SMPS स्टैंड्स फॉर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। फाइन, ये जो SMPS होता है भाई, ये SMPS का काम होता है CPU और कंप्यूटर के वो सारे कंपोनेंट्स जो CPU से कनेक्टेड है, सच एज आर
mouse, our keyboard, in some cases our speakers, fine, our headphones, जितनी भी चीजें हम लोग इस तरीके से प्लग इन करते हैं अपने सीपीयू के बैक पे, मॉनिटर और प्रिंटर को छोड़ करके, बिकॉज इनके पास अपनी खुद की पावर सोर्स होती है, फाइन, बाकी सारे कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करने का काम करता है एसएमपीएस। ये एसएमपीएस सिर्फ मदरबोर्ड को ही नहीं बल्कि हमारी हार्ड डिस्क को, सीपीयू के कूलिंग फैंस को, फाइन, और सारे अदर कंपोनेंट्स सच एज आर डिस्क ड्राइव्स, इनको भी ये पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस इन विच HDMI पोर्ट इज अवेलेबल। अब ये HDMI पोर्ट क्या होती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है, ठीक है। अब इस HDMI पोर्ट को समझने के लिए पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझनी पड़ेंगी भाई, फाइन। हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं जिनमें हम लोग अपने पेरिफेरल्स को, पेरिफेरल्स का मतलब हो गया इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को प्लग इन करते हैं, फाइन। नाउ इन ऑल दीज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस वी हैव अ केबल विद अ सॉकेट। तो वो जो सॉकेट होता है, सॉकेट को हम लोग प्लग इन करते हैं एक पोर्ट के अंदर, फाइन। सो दैट पोर्ट इज अवेलेबल इन आवर मदरबोर्ड्स। अभी मैंने इतना बता दिया था तुम लोगों को, फाइन। अभी जितनी भी पोर्ट्स हैं इनको हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करा हुआ है, इनकी फंक्शनैलिटी और इनके स्ट्रक्चर और वर्किंग नेचर के बेसिस पे, फाइन। उन्हीं में से एक पोर्ट है हमारी HDMI पोर्ट, एंड दिस HDMI स्टैंड्स फॉर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, फाइन। ये HDMI का मतलब क्या होता है भाई, HDMI का मतलब होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और ये HDMI क्या करता है, जनरली ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल्स कैरी करता है, फाइन। इस HDMI का एक कह सकते हो भाई छोटा भाई भी है VGA, फाइन, बट दिस VGA कैन ओनली कैरी वीडियो सिग्नल्स। इस VGA में ऑडियो सिग्नल्स नहीं होते हैं, VGA में सिर्फ और सिर्फ वीडियो सिग्नल्स ही होते हैं। नाउ The answer of this question will be displays or monitors. Fine. Generally ये जो HDMI पोर्ट है ये हमारे डिस्प्लेज में, लाइक हमारे LED डिस्प्ले, LED पैनल्स हो गए, LCD पैनल्स हो गए, टेलीविजन हो गए, फाइन, इनमें अवेलेबल होता है, या फिर हमारे मॉनिटर्स में अवेलेबल होता है, फाइन। लेकिन ये CRT मॉनिटर में बेटा तुम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, इसको CRT मॉनिटर में चेक मत करना। यू कैन चेक दिस इधर इन योर लैपटॉप्स, बिकॉज इन सम ऑफ द स्मार्ट लैपटॉप्स जो 2012 या 13 के बाद मैन्युफैक्चर हुए थे उनमें HDMI पोर्ट अवेलेबल होता है। देन सारी LED और LCD टीवीज में अवेलेबल होता है, फाइन। सो यू कैन फाइंड दिस पोर्ट ओवर देयर। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच पोर्ट इज कॉमनली यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ऐसा कौन सा पोर्ट है जो 90% डिवाइसेस या बहुत सारे डिवाइसेस में मोस्टली हम लोगों को देखने को मिलता है, फाइन। वेल थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जरा। तुम लोगों ने देखा होगा इन आवर एंड्रॉइड चार्जर्स वी हैव अ पोर्ट, फाइन। Similarly, in our laptops, we have a common port. In some of our smart gadgets, we have this port. So generally, in all the computing gadgets or devices, we have a USB port. Fine. तो इसका correct answer होगा USB, and USB stands for Universal Serial Bus. Okay. Now our next question. Which port can transmit both video and audio signals? कौन सा ऐसा पोर्ट है जो वीडियो और ऑडियो दोनों सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकता है, फाइन। Now that port is HDMI. मैंने अभी ऊपर डिस्कस करा था ना इस चीज को कि भाई ये जो HDMI पोर्ट होता है ये वीडियो और ऑडियो दोनों को ट्रांसमिट करता है। Whereas अगर क्वेश्चन होता कि which port can transmit video signals only, तो वहां पर आंसर आता हमारा VGA पोर्ट, फाइन। Now the last question. How many pins are there in PS2 पोर्ट? हमारी PS2 पोर्ट में कितने पिन्स होते हैं? अब ये PS2 पोर्ट क्या होता है भाई, जैसे हमारे पास ये बेटा HDMI और VGA पोर्ट है, USB पोर्ट है, सिमिलरली हमारे पास 3 पोर्ट्स और होते हैं, दैट इज सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट एंड PS2 पोर्ट। तो भाई PS2 पोर्ट एक सर्कुलर, एक राउंड शेप्ड पोर्ट होता है, फाइन। इसमें कुछ 6 पिन्स होती हैं कुछ इस तरह से, फाइन। और ये जनरली यूज होता है कुछ गेमिंग कंट्रोलर्स को कनेक्ट करने में, माउस या कीबोर्ड को कनेक्ट करने में, फाइन। लेकिन अभी आजकल नए सिस्टम्स में इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसका कुछ इस तरीके से भाई डिजाइन होता है, ठीक है। इसकी अच्छी इमेज तुम लोग को नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिल जाएगी। तो इस PS2 पोर्ट में यू कैन इजीली सी दैट वी हैव 6 पोर्ट्स, 6 पिन्स, ओके। इसमें टोटल 6 पिन्स होती हैं, जो डॉट्स दिख रहे हैं इसकी पिन्स हैं ये, फाइन। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, दैट इज नेम द फॉलोइंग पोर्ट्स। इन पोर्ट्स के इमेज से तुम लोगों को नेम्स आइडेंटिफाई करने हैं भाई, फाइन। अभी जो पहला वाला है देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे 2 सेक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, फाइन। नाउ आवर फर्स्ट वन, फर्स्ट इज दिस। इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो, यहाँ पर हम लोगों के पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पिन्स हैं, 2 रोज अवेलेबल है सिर्फ, ठीक है। इट इज टर्म्ड एज आवर सीरियल पोर्ट। इसको हम लोग कहते हैं सीरियल पोर्ट, और ये बिट बाय बिट डेटा को पास करता है, बहुत स्लो होता है। देन सेकंड वी हैव
दिस वन, इसका देखो इसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में और उसमें नंबर ऑफ पिन्स भी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में. इट इज टर्म्ड एज आवर पैरेलल पोर्ट. फाइन, दिस वन इज टर्म्ड एज आवर पैरेलल पोर्ट. फाइन, अभी ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट वाला. मैंने अभी तुम लोगों को पिछले क्वेश्चन में दिखाया था ये वाला. देखो एक राउंड शेप पोर्ट है, इसमें 6 पिन्स हैं. इट इज टर्म्ड एज आवर PS2 पोर्ट. और ये जनरली कहां पर यूज होता है भाई? ये यूज होता है हमारे कीबोर्ड में, माउस में, गेमिंग कंट्रोलर्स में. फाइन, नाउ लेट्स मूव टू दिस वन. ये वाला जो पोर्ट देखने को तुम लोगों को मिल रहा होगा, ये हमारा 4th पोर्ट है और ये दिखने में कुछ सीरियल पोर्ट जैसा लगता है बेटा. फाइन, ये सीरियल पोर्ट जैसा लगता है बट ये सीरियल पोर्ट है नहीं. इसको कभी भी सीरियल पोर्ट कंसीडर मत करना. इट इज अ सेपरेट पोर्ट. इट इज आवर VGA पोर्ट और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है. फाइन, ये VGA पोर्ट क्या करता है भाई? जनरली हमारे जितने भी नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं उनमें मॉनिटर्स जितने भी देखे तुम लोगों ने, मॉनिटर के पीछे एक ब्लू कलर की केबल कनेक्टेड होती है. तो भाई उस केबल में जो सॉकेट होता है वो होता है VGA सॉकेट. ठीक है, और वो लगा हुआ होता है VGA पोर्ट में. फाइन, सो इट इज जनरली यूज्ड टू ट्रांसमिट वीडियो सिग्नल्स ओनली. जैसे वैसे वीडियो सिग्नल्स को ही ट्रांसमिट कर पाता है. देन नेक्स्ट वी हैव दिस वन. ये जो एडवांस वाला पोर्ट दिख रहा है एक छोटा सा, इट इज आवर HDMI पोर्ट. और मैंने बताया था कि ये जनरली हम लोगों के डिस्प्लेज और मॉनिटर्स में होता है और ये ऑडियो और वीडियो दोनों को ट्रांसमिट कर सकता है. एंड देन वी हैव दिस वन. ये वाला जो पोर्ट दिख रहा है ये एक यूनिवर्सल पोर्ट है और ये सारे डिवाइसेस में कॉमनली देखने को मिलता है. इट इज टर्म्ड एज USB पोर्ट. फाइन, सो दीज आर 6 पोर्ट्स दैट वी हैव टू डिस्कस. इसका मैंने एक छोटा सा तुम लोगों को यहाँ पे जिस्ट दिया हुआ है. अभी कुछ रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. फाइन, नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सपैंड द फॉलोइंग टर्म्स. इन कुछ टर्म्स को हम लोगों को एक्सपैंड करना है, यानी कि इनका फुल फॉर्म लिखना है यार. फर्स्ट टर्म इज SMPS. फाइन, SMPS stands for switched mode power supply. Fine, it generally provides the power to most of the components of our CPU. Fine, then next we have HDMI and VGA. अब ये जो HDMI और VGA पोर्ट हैं, ये दोनों की दोनों पोर्ट्स क्या करती हैं? जनरली ये दोनों की दोनों पोर्ट्स हम लोगों के कंप्यूटर में वीडियो सिग्नल्स को प्रोवाइड करती हैं. बट ये जो HDMI पोर्ट है, ये HDMI पोर्ट वीडियो के साथ साथ ऑडियो को भी प्रोवाइड करता है. फाइन, hence it is termed as high definition multimedia interface. First thing. Second important thing is HDMI पोर्ट में पिक्चर क्वालिटी VGA के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी होती है और ये ज्यादा कलर्स को सपोर्ट करता है. फाइन, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज हाई डेफिनेशन पोर्ट आल्सो. फाइन, तो भाई HDMI का फुल फॉर्म हो गया हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस. एंड देन नेक्स्ट वी हैव VGA. तो भाई VGA मैंने बताया था कि क्या कर रहा है? ये वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है. इट स्टैंड्स फॉर विजुअल ग्राफिक्स एरे. फाइन, इट स्टैंड्स फॉर विजुअल ग्राफिक्स एरे बिकॉज ये क्या कर रहा है? ये विजुअल ग्राफिक्स को, यानी वो वाले ग्राफिक्स जिनको हम लोग देख सकते हैं, उनको पास कर रहा है एक सीक्वेंस में. देन नेक्स्ट वी हैव USB. USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस. हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं पीछे. ये एक यूनिवर्सल पोर्ट है. मोस्टली सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिनमें कंप्यूटिंग फंक्शनैलिटी होती है उनमें ये देखने को मिल जाता है हम लोगों को. फाइन, देन नेक्स्ट वी हैव HLL. HLL स्टैंड्स फॉर हाई लेवल लैंग्वेजेस. वेल, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. In this, most of the codes are written in English-like keywords. Then next we have LLL. LLL is also a type of programming language. इसके दो subcategories हैं, that is machine language and assembly language. Now this LLL is directly understandable by our computer system. Fine, and hence it is termed as low-level language. Then next we have this term जो बच गई थी, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा था. It is modem. अब ये modem क्या होता है भाई? जनरली फॉर कनेक्टिंग आवर डिवाइसेस विद इंटरनेट. हम लोगों के डिवाइसेस को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए या फिर इंटरनेट में कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं. दैट डिवाइस इज जनरली टर्म्ड एज मॉडेम. फाइन, दिस मॉडेम जनरली हेल्प आवर कंप्यूटर टू कनेक्ट विद नेटवर्क्स एंड शेयर आवर डेटा इन द नेटवर्क रीडेबल फॉर्मेट. मतलब ये क्या कर रहा है भाई? हमारे डेटा को नेटवर्क रीडेबल यानी उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है जिसमें नेटवर्क हमारे डेटा को समझ पाए, पढ़ पाए. Fine. Now this modem is a combination of two terms. ये modem दो terms का combination है, that is MO. Fine. In the first part and then in the second part we have DEM. मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. I think सबको visible होगा ये. Fine. It is a combination of two terms, MO and DEM. In this MO stands for modulator and DEM stands for demodulator. Hence our modem stands for modulator and demodulator. Fine. So it was all about our full forms, one words and some picture based questions. Now, the most important thing. After watching this video, you can comment down all your queries or doubts in the WhatsApp group because the group is open for all. Fine. This group will be active for next 30 minutes. Within these 30 minutes, you have to write all your queries in the group. Fine. Well, for this exam, you have to prepare everything from your notebook only, from this sheet and the previous sheet which I gave you.
Along with that, you can also revise from both the videos which I shared in the starting of this chapter. Fine. और इस वीडियो के लास्ट पेज पे भी तुम लोगों को लिंक्स मिल जाएंगी, तो तुम लोग वहां से भी उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम.